afternoon, everybody. Good afternoon. God bless you. Thank you, Gaurav. Okay, your first live class legally. I don't know your name. God bless you. God bless you, Manika. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, everybody. Of course, Remjin, my blessings always there. Ishika, God bless you. Thank you, Ishika. My blessings always there. Pranam. Yes, welcome back. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, everybody. God bless you, Akanksha. Thank you, Priyanka. Good afternoon. Radhe Radhe Diamond. Namaste. My blessings always there, Sakshi. Good afternoon, good afternoon, good afternoon, everybody. Good afternoon, good afternoon. Okay, Devanka, good afternoon. Satsriyakal, Harman, good afternoon, good afternoon. Aisha, I'm good, thank you. Apratim, you have not attended my classes. इसको CPC में बहुत डिस्कस किया हुआ है. Yes, I'm good. Good afternoon. Good afternoon, Amiteshwar. God bless you. Which subject? This is evidence. BSA. Good afternoon. Okay, Sneha, welcome. Good afternoon. Good afternoon. Okay, welcome, Shruti. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Good afternoon. Next class show नहीं हो रही. Okay, I'll get it done. अगली क्लास शो नहीं हो रही. अगली CRPC शो नहीं हो रही क्या? CRPC हो रही है ना? अच्छा, okay. I think refresh करो. It's showing. Okay, okay. हो रही है. Okay, fine. New student Muskan, welcome. All the students, welcome. Okay, ठीक है. Good afternoon. Okay, okay. New student Rahul. Welcome, new students. Chali, I guess we'll have to start. Yeah, we'll have to start now. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Okay, wonderful. Rahul, welcome. Chali, I guess we'll have to start. The offline batch is waiting. Okay, Mayur, welcome. Chaliye, I understand it's a new batch, so God bless you, Sachin. Let's start now. I'll just wait for 10 seconds. You can all join. There's a huge rush in the online batch today. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Just send me a message, Hemant, to Anil Khanna. I'll add you. Chaliye, we'll have to start now. Those students who are joining, you have recorded lectures, so no, not an issue. Okay, so
The new students to the January batch, welcome. Um, you're now boarding a 13-month long, I will say, arduous journey, which will take you, the road will lead you to becoming a judge, a judicial officer. I teach law in a different way, in the sense that, firstly, I believe that there is no cutting of corners. We must learn every word of every provision of law to become a master of law. My basic endeavor is to ensure that your concepts become clear and you learn to read law in a particular way. हम लोगों ने जैसे LLB किया है, हम सब ने एक जैसे किया है, and I understand that वहां पे थोड़े से क्वेश्चंस किए वो आ जाते हैं, 70% भी आ जाते हैं. But please remember, now you are entering a phase where there is a competition. और कंपटीशन में इवन अगर आपके 85% भी आ जाएं और जो आपके ऊपर है उसका 85.1% आ गए, वो जज बन जाएगा, आप नहीं बनोगे. सो दैट इज व्हाई नाउ इट इज द गेम इज नॉट कि कितने मार्क्स लेने हैं, द गेम इज कि दूसरों से बेटर होना है. आई कैन स्पीक अबाउट कंपटीशन बिकॉज आई कम फ्रॉम अ कंपटीशन. आई क्रैक्ड यूपीएससी long time back, of course, now, and I was a topper of my IPS batch. इसलिए मुझे कंपटीशन का आइडिया है कि कंपटीशन में निकलने के लिए व्हाट ऑल इज नीडेड. सबसे पहले, एंड आई थिंक इवन दोज मेरे जुलाई बैच आल्सो द सेम थिंग अप्लाइज टू ऑल. सबसे पहले, यू मस्ट हैव अ डिसिप्लिन इन योर माइंड. यू नो, एलएलबी वगैरह में आपकी मार्किंग होती है, कितने लेक्चर्स हैं, यहाँ कोई आप पे डंडा नहीं है, अनलेस कि आप पेरेंट्स आपसे पूछे क्या कर रहे थे. बट यू आर गोइंग टू बिकम अ जज. आप लोगों की जिंदगी का फैसला करोगे. सो व्हेन यू आर गोइंग टू बिकम अ जज, और आप लोगों के राइट्स डिटरमिन करोगे, उनकी प्रॉपर्टीज डिटरमिन करोगे, उनको जेल भेज सकते हो, इतना कुछ होने वाला है. दिस इज अ टाइम व्हेन यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ जज, एक्टिंग लाइक अ जज, बिहेविंग लाइक अ जज. और एक जज को जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हम उसको बोलें ध्यान दो या उधर क्या देख रहे हो. यू आर नॉट स्कूल किड्स. At least I treat you like judges. And all my previous students know that right from day one, I treat you as a judge. There is no reason why you should not become a judge. मेरे अभी तक मुझे भी नहीं पता 600-700 से ऊपर स्टूडेंट्स जज बन चुके हैं. हाँ, मुझे इतना पता है कि मेरे ADJs 30 के ऊपर है. उन सब में एक चीज कॉमन है, हार्ड वर्क तो है ही, उसमें तो खैर आई नीड नॉट से. What is important in all of them is discipline. A, B. Always remain motivated. इस पूरी जर्नी में बहुत बार ऐसे लगता है हम नहीं कर सकते, हमारे बस का नहीं है. Never be demotivated. Always remember, and I don't say it, I'm not a politician, और मुझे ना ही वोट्स चाहिए. I always say my students are best in the country. And my July students can now vouch कि at least आधे जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, they are the best in the country. So when you are the best in the country, किस बात के लिए डिमोटिवेशन? नो डाउट कई बार हम थक जाते हैं, क्योंकि सातों दिन यहाँ क्लास चलने वाली है, आपको कोई छुट्टी नहीं, अनलेस कि मैं बीमार हो जाऊं. इन सच केसेस प्लीज रिमेंबर, ऐसे जब टाइट शेड्यूल होता है, बहुत मुश्किल होता है अपने आप को थ्रू आउट फोकस रखना. आई एग्री, आई कंसीड, बट फिर तभी तो आप जज बनोगे और बाकी नहीं बनेंगे. सो एक चीज यहाँ पे आज आप अपने माइंड में कुछ चेंजेस ले आओ. ए, अटेंड ईच एंड एवरी क्लास, कुछ भी हो जाए. एक आने का डिसिप्लिन होता है. क्लास में जब मैं पढ़ाता हूं, यहाँ सीधा दिमाग में जाता है, ऑनलाइन में नहीं जाता. दिस आई एग्री, आई एडमिट that these are big handicaps for the online students.
क्योंकि क्लास का एम्बियंस अलग होता है, क्योंकि मैं इन फ्लैश एंड ब्लड आपके पास हूं, और जो मैं बोलता हूं यहाँ पे, यू आर ऑल फोकस्ड। ऑनलाइन में क्या होता है, फोकस बहुत बिगड़ जाता है कई बार, यू नो कभी ठंड है तो चलो मैं अभी बाद में पढ़ लूँ, आधा पढ़ लिया है, ब्रेक कर करके पढ़, 100 चीजें होती। सो वन थिंग, फर्स्टली प्लीज रिमेंबर, बी डिसिप्लिन फ्रॉम टुडे। डिसिप्लिन नॉट ओनली इन स्टडीज, डिसिप्लिन इन योर नॉर्मल लाइफ। सेम टाइम पे उठो, सेम टाइम पे सो, अपना दिन को डिवाइड करो। इस टाइम पे मैंने पढ़ना है, इस टाइम पे मेरी क्लासेस है, इस टाइम पे मैंने मटर गश्ती करनी है। आई एम नॉट सेइंग यू बिकम फ्रॉग्स इन द वेल, बी एन ऑलराउंडर, सब कुछ करना है, बट सही टाइम पे सही चीज करनी है। पढ़ने बैठे तो 5 रात पढ़ते जा रहे हैं, सो नहीं रहे, उसके बाद 5 रातें 5 दिन सो रहे हैं, बिकॉज दिस इज रॉन्ग। आई एम टॉकिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस, और क्योंकि मैं खुद कंपटीशन से निकला हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, एंड विद द एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव बिकम जुडिशियल ऑफिसर्स। दिस इज द टाइम जब आप मेहनत करोगे, ना कि जब डिसाइड जब हो गया कि ओके आज पंजाब जुडिशरी हो गया, चलो जी अब शुरू करते हैं। नहीं, कभी नहीं हो सकती। जो शुरू की तैयारी होती है वो उस टाइम तो सिर्फ रिवीजन होती है। रिवीजन, री रिवीजन, रिवीजन टू द पावर ऑफ 100 इज द मंत्र ऑफ सक्सेस। आपको कोई किताबें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस बैरक चाहिए मेरे पास, और कोशिश करो कि हर वर्ड लिख लो। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नोट्स नहीं होते हैं, नोट्स अन अकेडमी देती है, बट आई डोंट नो, आई कांट कमेंट वो अच्छे हैं बुरे। बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि क्लास में जो मैं बोलता हूँ वो ले लो, क्योंकि हर सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेंस, तो इसीलिए मेरी इंटरलिंकिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। और जब इंटरलिंकिंग करके आप एग्जाम में लिखते हो तो नेचुरली यू गेट मोर मार्क्स देन अदर्स। प्लस जब इंटरलिंकिंग होती है सब्जेक्ट्स की, तो आपका होराइजन अपने आप वाइड हो जाता है, और आपको बहुत कुछ समझ आना शुरू हो जाता है जो आपने अभी तक नहीं सोचा होता। जो सिस्टम है, क्लासेस आपकी शुरू हो रही हैं, अभी थोड़े दिनों बाद हम टाइम्स चेंज करेंगे, थोड़ा टाइम ठीक हो जाए, रात लेट हो जाए, देन यू ट्राई टू कवर एज मच एज इन द क्लास। उसके बाद वापस जाके रेस्ट करने के बाद 1 घंटा उसको वापस सुनो। आप डबल स्पीड पे चला सकते हो लेक्चर, बेस्ट पार्ट इज आपको रिकॉर्डिंग्स मिल रही हैं, उसको उसी दिन रिकॉर्डिंग्स को सुन के अपने नोट्स को ठीक करो। उस दिन आपका पूरे उस टॉपिक पे नोट्स तैयार हो गए। मैं साथ साथ आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी बताता हूं, हर सेक्शन के साथ। इसमें मेंस के क्वेश्चंस क्या है और इसमें इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हर एक के साथ साथ बताता हूं। इसलिए आई ऑलवेज एडवाइस कि 3 रजिस्टर रखो, एक प्रीलिम्स का, एक मेंस का और एक इंटरव्यू का, ताकि कल को जब आप क्रॉस करोगे मेंस तो आपको टेंशन होती है क्या होगा, आपका इंटरव्यू का रजिस्टर तैयार होगा। एक हफ्ते के बाद जो आपने पढ़ा है उसको एक बार पढ़ के अपने माइंड से उसके पॉइंट्स लिखो, जिसको मैं कहता हूं आपके स्केलेटन नोट्स। पर वो जो स्केलेटन नोट्स लिखो वो देख के नहीं लिखने, वो पढ़ के माइंड में अपने डाल के बेयर एड को देख के बंद करके तब लिखो। महीने के बाद जो आपके फर्स्ट रिवीजन के स्केलेटन नोट्स है उनको एक बार रिवाइज करो। अगर पहले दिन आपको 2 घंटे लग रहे हैं एक लेक्चर को, रिवीजन में आपको लगेगा 1 घंटा, री रिवीजन में लगेगा आधा घंटा, और री री रिवीजन में लगेगा 15 मिनट। पर वो चीज आपके दिमाग में, आपके जहन में पक्की हो जाएगी, और आप उसको कभी भी नहीं भूलोगे। फिर एग्जाम में कहीं से भी जब आएगा, यू विल ड्रॉ इट फ्रॉम द बैक ऑफ योर माइंड। प्लीज रिमेंबर, लॉ रटा नहीं होता। ठीक है, एलएलबी में हम कर लेते हैं, बट अब टाइम आ गया जब आपको समझना है। वाई? बिकॉज यू आर जजेस, और जजेस का काम होता है लॉ को इंटरप्रेट करना। अगर आपको लॉ का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो इंटरप्रेट कहां से करोगे, तो फिर जज कैसे बनोगे? और यही चीज वो आपके मेंस में देखते हैं कि आप मेंस को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो। इंटरप्रिटेशन जो है
वही आपका यूएसपी होता है, और वो एकदम नहीं आता। जैसे कि मेरे पुराने स्टूडेंट जानते हैं, पहले महीने शायद आपको लगेगा हो क्या रहा है, ऑल द जुलाई स्टूडेंट्स नो इट वेरी वेल, हर साल होता है। दूसरे महीने आप मेरे से आंख मिला के बात करते हो, तीसरे महीने आप भागना शुरू करते हो, चौथे महीने आप खुद उड़ना शुरू करते हो। The reason is that you are not used to such type of teaching. And once you get used to such type of teaching and then suddenly you realize, okay, this is law. अभी तक तो मुझे पता ही नहीं था. Then you start mastering it in your own way. और एक बार आपको खुद पढ़ना शुरू हो जाता है, फिर मेरी जरूरत नहीं है. फिर आपको कोई भी नया लॉ दूंगा वो आप अपने आप इंटरप्रेट कर लोगे. I've taught more than 9-10,000 students till now in my entire career as a teacher. And I can vouch that all those 9-10,000 are the best in the country. ठीक है, सारे जज नहीं बने, पर सारे, कोई बेस्ट लॉ ऑफिसर बना, कोई बहुत सारे प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारे लॉ ऑफिसर्स हैं, पीपीज हैं, एपीपीज हैं, और बेस्ट एडवोकेट्स। मेरे स्टूडेंट्स कभी लोअर कोर्ट में नहीं जाते, उनको शर्म आती। दे ऑलवेज से सर उनको नहीं आता लॉ। ऑल ऑफ देम प्रैक्टिस इन द हाई कोर्ट। एक दिन मैं गलती से चला गया कोई काम के लिए, एंड द कॉरिडोर विच आई वेंट, सारे, every student was my student. It's a very proud feeling for a teacher, and that goads me to do better and better every year, to give you the best in the country. जो मैं आपको दूंगा बस उतना ही उसको इम्बाइब कर लो, उसको एसिमिलेट कर लो, और उसको जो मैं क्लास में बताता हूँ, ये करना, ये करना, ये करना, उसको करते जाओ। नॉट ओनली आई, मेरे बाकी जो 2 लॉ के टीचर्स हैं, वो भी दे आर द बेस्ट इन द कंट्री। शीतल मैम एंड प्रिया मैम, शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट, और वो आपको माइनर लॉज सारे कराएंगे। बहुत सारे लॉज आपके पंजाब और हरियाणा के नहीं हैं जो हम कराएंगे, बट प्लीज रिमेंबर, आपका कोई सिलेबस नहीं है। एनीथिंग विच इज LAW इज योर सिलेबस। सो कुछ भी अगर लॉ है वो आपका सिलेबस है, ये मान के चलना है। आई डोंट वांट यू टू कि मैं ये सिलेबस में हो गया नहीं हो गया, जो सिलेबस में है वो तो होगा ही होगा। उसके अलावा वी आर कवरिंग अबाउट 35 लॉज टोटल। उसमें जैसे JJ एक्ट है, NDPS एक्ट है, टॉट्स है, वो कहीं जगह नहीं है। बट सपोज आप गॉड फॉरबिड हरियाणा पंजाब में ना हुए, तो क्या पता आप यूपी में निकल जाओ, क्या पता आप दिल्ली में निकल जाओ, राजस्थान में निकल जाओ, वहां ये है। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर ट्राइंग टू कवर each and as many lower minor acts as is possible. उनको भी प्लीज डू नॉट इग्नोर के चलो हमारे सिलेबस में पंजाब हरियाणा में तो है नहीं, क्या पता कहाँ काम आए। क्या पता पंजाब हरियाणा की इंटरव्यू में आपसे जज साहब पूछ लें, लॉर्डशिप पूछ लें, ओके JJ एक्ट में क्या प्रोविजन है ये। अब आप ये तो नहीं कह सकते फाउल सर, यू कांट आस्क मी दिस क्वेश्चन। यू हैव टू आंसर। दैट इज व्हाई प्लीज रिमेंबर, यू हैव टू बी मैच्योर। यू हैव टू बी मैच्योर एज अ थिंकर। You may be of any age. I know you're all kids grown into little maturer kids. I know that. But my endeavor is to turn you into a completely mature person within these 13 months. और वो तभी होगा अगर डिसिप्लिन होगा, डिटेल्स होंगी, और लॉ के लिए डोंट टेक लॉ एज अ मॉन्स्टर, इंजॉय लॉ। जिस दिन आप लॉ को इंजॉय करना सीखोगे, उस दिन आपका आधा बैटल हैज बीन वन। सो स्टार्ट एंजॉयिंग योर लॉ, और वो एंजॉयमेंट तभी होता है जब आप समझते हो। अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर वही नेचुरली वहीं पे रोड ब्लॉक हो जाता है। इसीलिए मेरी ये आपसे एक सजेशन है, रिक्वेस्ट है, डू नॉट मिस अ सिंगल क्लास। हम लोग नहीं मिस करते, ये तो हमें करना चाहिए, बट वी डोंट मिस क्लासेस बिकॉज वी नो हाउ इंपॉर्टेंट every day is for my students. Now with this background, I welcome the new students of January batch and the online batch to this arduous journey, as I said, of becoming a judicial officer. But judicial officer तो बनोगे, आपको कोई रोक नहीं सकता, ये तो मैं जानता हूँ। You just have to work hard. Just keep on doing what I'm telling you. I speak out of experience only. Just keep on doing that, and you will see that those golden doors are going to open. Always remember,
There is one golden key which opens every door, and that is absolute knowledge of law. If you have an absolute knowledge of law, आपको कहीं ना कोई दरवाजा जरूर खुलेगा. मेरा ही केस ले लो, आईपीएस के बाद लॉ ही आज मेरा ब्रेड एंड बटर बना हुआ है. सो अगर मैं आईपीएस के बाद लॉ को यूज कर सकता हूँ, एंड आई थिंक माय इनकम इज फार मोर देन आई हैड इन आईपीएस, बिकॉज मैं 2 नंबर के पैसे नहीं लेता था. सो यू कैन इमेजिन दैट लॉ कैन बी योर golden goose forever, provided you do it, you give it the proper respect. किसी को रिस्पेक्ट दो, आपको वापस से रिस्पेक्ट मिलती है. लॉ को रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट देके उसको समझो और फिर उसको इंजॉय करो. एंड व्हेन यू स्टार्ट एंजॉयिंग, then there is no going back. I teach in a very disciplined way, in the sense मेरे 2 मॉड्यूल्स में पूरा बैच चलता है. 13 महीने का बैच होता है, 2 मॉड्यूल्स में चलता है. पहला मॉड्यूल कोई भी मान लो, चाहे जुलाई मान लो, चाहे जनवरी मान लो, क्योंकि सब्जेक्ट्स अलग होते हैं और हर साल 12 साल से ऐसा ही. एंड दिस मॉड्यूल आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर बीएनएसएस, बीएसए, erstwhile CRPC and Evidence Act, Hindu law limitation. Priya ma'am has already started contract 2. I think she must have done indemnity. And Seetal ma'am, of course, will be starting with your SOGA. Also, at this point, I must tell you, please do. This is probably the only academy. In fact, we were the pioneers in this. We started language on everyday basis because I understood that language is a paper. So do not miss your language classes. 2 दिन English, 2 दिन Hindi, and 2 दिन Punjabi. Students from Himachal, from Haryana, जिनको पंजाबी बिल्कुल नहीं आती है, this is a golden opportunity to learn Punjabi. Because जिसको पंजाबी आती है, please remember, अगर हरियाणा में 80,000 स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं, पंजाब में 3,000 अपेयर होते हैं. उसका रीजन क्या है कि लोगों को पंजाबी नहीं आती, और इसलिए बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जो हरियाणा में फेल होते हैं, वो पंजाब में टॉपर्स होते हैं. द रीजन बीइंग कि वहां है ही नहीं, कंपटीशन नहीं है, पंजाबी नहीं आती तो खत्म. Why can't we learn Punjabi? It's very simple. So, and let me tell you, the teachers are very, very good. They're very cooperative. Ritu ma'am is like a mother figure. आपको दिख जाएगा. And Rajni ma'am will be teaching you English. So we'll have two classes of each language. Fridays, of course, will be essays. तो वो हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, वो सिस्टम के मुताबिक ही चलता है. There is nothing haphazard here. जो आज चल रहा है वही अगले साल चलेगा. इस टाइम पे वही चल रहा होगा. Same. So with these words, my welcome to all of you, my blessings. All of you should achieve your dreams. You've come here to achieve your dreams. You know, all of you are sitting here with stars in your eyes, with hopes, with dreams that yes, I'm going to sit on that chair. I'm here, in fact, I and my team are here to help you realize those dreams. But जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, काश मैं आपके लिए दीवार चढ़ सकता. दीवार तो आपने ही चढ़नी है. हम पुश कर सकते हैं, चढ़ना तो आप नहीं है. इसीलिए प्लीज रिमेंबर, चढ़ने के लिए तैयार हो जाओ. एक दिन भी, चाहे कितना भी डीमोरलाइजेशन हो, चाहे कितना भी मन ना करे कि यार ठंड है, बारिश है, गर्मी है, घर से लगा लेते हैं, ऑनलाइन मिल रहा है सब कुछ. नो, आप देख लेना, घर पे कभी भी वो लेवल नहीं आता समझने का जो क्लासरूम में आता है. एंड सिंस यू हैव पेड फॉर ऑफलाइन, I see no reason why you should not be attending the offline. With these words, God bless you all, and let's start our journey. The second module, or rather, for the January batch, the first module. आप लोगों का second module शुरू होगा जुलाई के end में. So now we'll start with the Indian Evidence Act, the erstwhile Indian Evidence Act. Welcome all my online students also. God bless you all. My blessings always with all of you. So just be focused. Online students have done very, very well. I think about 40-50 students last year out of online, they made it. Now you are all in the queue. Now, you know, Indian Evidence Act has been repealed. अब इंडियन एविडेंस एक्ट नाम की कोई चीज नहीं है, बिकॉज उसकी जगह आ गया है बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम.
और उसका आखिरी सेक्शन बोलता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट स्टैंड्स हियर बाय रिपील्ड। सो इसका मतलब है कि आज के दिन में हमारे देश में इंडियन एविडेंस एक्ट नाम की कोई चीज नहीं रह गई। बट वही कहते हैं ना, व्हाट्स इन अ नेम, शेक्सपियर ने कहा है व्हाट्स इन अ नेम। तो नेम का जहां तक सवाल है, सी वी सॉ दैट देयर वर थ्री चेंजेस, द आईपीसी, द सीआरपीसी and the Indian Evidence Act. All three were changed and they were renamed. The objects and reasons of these changes I will discuss in the next class. But since we are dealing here with the Bharati Sakshya, as the word says, Sakshya. Sakshya, दो वर्ड यूज होते हैं, साक्ष्य और प्रमाण। साक्ष्य जो होता है वो बेसिक चीज क्या होती है? एविडेंस। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि है क्या एविडेंस और कहां जरूरत पड़ती है। एविडेंस नेचुरली कांट बी डिफाइंड, बिकॉज हम बता सकते हैं कि क्या क्या एविडेंसेस होते हैं, बट एविडेंस की डेफिनेशंस हैं जो रिस ने दी हैं। बट वन थिंग वी कैन से दैट पहला क्वेश्चन ये उठता है कि एविडेंस आता कब है। यू नो, ऑलवेज रिमेंबर कि हमारे पास दो तरह के सिस्टम्स हैं, जस्टिस सिस्टम्स। ऑल ऑफ अस आर बोर्न विद सर्टेन राइट्स। कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो हम पैदा होते हैं हमें मिल जाते हैं, कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो बेसिकली द स्टेट, द सॉवरेन गिव्स यू। जब कहानी शुरू हुई थी तो देन देयर वर ओनली वन टाइप ऑफ राइट्स व्हिच वी कॉल नाउ सिविल राइट्स। सिविल राइट्स अगर इन्फ्रिंज होते थे तो नॉर्मली हम उसको कहते थे कि जैसे थे कर दो, रेस्टिट्यूशन इन इंटेग्रम, जैसे थे वैसे कर दो, ये बेस था। हाउएवर एज टाइम पास्ड, अराउंड 8th 9th सेंचुरी के आसपास, ये रियलाइज हुआ कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका कंपनसेशन नहीं दिया जा सकता, जहां पे पनिशमेंट देनी जरूरी है। तो कौन से ऐसे एक्ट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है सोसाइटी की? सोशल ऑर्डर। अगर सोशल ऑर्डर नहीं है तो सोसाइटी में पैंडेमोनियम है, केओस है, तो कोई सोसाइटी रह ही नहीं सकती। टू मेंटेन ऑर्डर, व्हाट वी कॉल सोशल ऑर्डर, वी विल हैव टू से कि ये चीजें तुमने नहीं करनी या ये चीजें तुमने करनी है। अब ये कौन बोलेगा? नेचुरली जो आपका सॉवरेन है। सॉवरेन डिफरेंट तरह के होते हैं। सॉवरेन कैन बी अ मोनार्क, सॉवरेन कैन बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी, कैन बी अ डेमोक्रेसी, वी द पीपल। तो सॉवरेन बताएगा आपको कि ये एक्ट करने हैं और ये नहीं करने। इन अदर वर्ड्स, द एक्ट्स और ओमिशंस are clearly given, defined by the sovereign, that these have to be done or these have not to be done. अगर आप वो करते हो या नहीं करते, जहां नहीं करते उसको हम कहते हैं इलीगल ओमिशन। ओमिशंस दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ओमिशंस, जैसा कि सपोज मैं आज आ रहा था तो एक एक बेगर आई, मुझे एक छोटा सा बच्चा उठाया हुआ था, बाबू पैसे दे दो, मैंने कहा काम करो, यंग हो तुम। सपोज उसका बच्चा मर जाए भूख से क्योंकि मैंने पैसे नहीं दिए, एम आई पनिशेबल? नो। पर अगर आज बीएनएस में लिख दिया जाए कि अगर आपने बेगर को नहीं पैसे दिए और वो मर गया तो इट इज पनिशेबल, नाउ इट इज पनिशेबल। सो प्लीज रिमेंबर, वही एक्ट्स या इलीगल ओमिशंस जो लॉ कहता है, अगर आप करते हो या नहीं करते एज ए केस में भी, तो फिर आपको पनिश किया जाएगा। सो अब कंसेप्ट आता है पनिशमेंट का। इसका मतलब हो गया अब मेरे राइट्स दो भागों में बट गए। एक वो राइट्स जो कंपनसेशन से ठीक हो सकते हैं,
जो रेस्टिट्यूशन इन इंटेग्रम से ठीक हो सकते हैं, और एक वो राइट्स जो सरकार ने मना किए हैं कि ऐसा करना है या नहीं करना, और अगर आप फिर भी वो चीज करते हो तो फिर सजा मिलेगी, यानी कि कंसेप्ट ऑफ सजा। इससे हमारे दो सिस्टम बन जाते हैं, सिविल जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। सिविल जस्टिस सिस्टम का अंत क्या होता है? कंपनसेशन, रेस्टिट्यूशन इन इंटीग्रम, या आज के दिन में ले लो स्पेसिफिक रिलीफ। बट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सजा। सो ऑलवेज रिमेंबर, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का अंत हमेशा सजा होगा, जबकि सजा नाम की चीज सिविल लॉ में नहीं है। ये दो बेसिक फर्क है बिटवीन द सिविल जस्टिस सिस्टम एंड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हम बात कर रहे थे राइट्स की। जैसे कि मैंने बोला, कुछ राइट्स मेरे पैदा होते ही आ गए। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स, वो मुझे पैदा होते ही मिल जाते हैं, या मेरे को पर्सनरी राइट्स मुझे पैदा होते ही मिल जाते हैं। तो कुछ राइट जो हैं वो तो पैदा मुझे मिल गए। बट प्लीज रिमेंबर, राइट्स को राइट्स बनने के लिए, सी जो राइट्स ब्रिटिश टाइम्स पे थे आज नहीं है। अंग्रेजों को मिलते थे वो राइट्स, हमें हमें नहीं मिलते थे। तो इसका मतलब है राइट्स वो होते हैं जो उस वक्त लॉ रिकॉग्नाइज करता है। तो राइट्स कौन से होते हैं? जो उस टाइम का लॉ रिकॉग्नाइज करता है। नाउ व्हेन आई से उस टाइम का लॉ रिकॉग्नाइज करता है, अब उस टाइम का लॉ जो रिकॉग्नाइज करता है, दो हिस्सों में फिर बांटा जा सकता है। एक वो लॉ जो स्टैट्यूट में लिखा हुआ है, और एक वो लॉ जो स्टैट्यूट में लिखा नहीं हुआ। ना वो लॉ जो स्टैट्यूट में लिखा हुआ है, जो मुझे राइट्स दे रहा है या ले रहा है, उनको हम कहते हैं सब्सटैंटिव लॉ। सो व्हाट इज सब्सटैंटिव लॉ? जो मुझे राइट्स दे रहा है या ले रहा है बाय अ स्टैट्यूट। बट क्या अगर स्टैट्यूट से नहीं है तो क्या मेरे राइट्स नहीं है? नाउ इसको हम फिर दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर स्टैट्यूट नहीं बोल रहा तो फिर याद रखना, क्रिमिनल लॉ में वो राइट नहीं है। सो अगर स्टैट्यूट ने, सो दैट मींस, प्लीज रिमेंबर, क्रिमिनल और सिविल लॉ में फर्क क्या हो गया? गैमेट ऑफ सिविल लॉ इज वेरी वाइड। गैमेट ऑफ सिविल लॉ को मैं दो हिस्सों में बांट सकता हूं। एक, जहां पे स्टैट्यूट उसको बोल रहा है कि ये तुम्हें राइट है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा, पार्टनरशिप एक्ट, वो आपको राइट्स दे रहे हैं कि आप ये ले सकते हो, अगर आपने ब्रीच किया तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, सब चीजें लिखी हुई हैं। और कई चीजें ऐसी जो लिखी नहीं हुई, फॉर एग्जाम्पल टॉर्ट्स। सो इसीलिए प्लीज रिमेंबर, जो हम बात करते हैं राइट्स की सिविल लॉ में, सब्सटैंटिव लॉज उसमें जरूरी नहीं है कि सारा का सारा स्टैट्यूटरी हो, स्टैट्यूट से हो, लॉ से हो। सो बहुत सारे ऐसे हमारे राइट्स हैं जो लिखे नहीं हुए, और बहुत सारे राइट्स हैं जो लिखे भी हुए हैं। इसीलिए याद रखना, सीपीसी का दायरा बहुत बड़ा होता है और बहुत सारे ग्रे एरियाज होते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, हर राइट लिखा नहीं गया। तो उसके अंदर जब हम डिटर्मिन करते हैं कि इसका राइट है या नहीं, तो हो सकता है हम कोई रेगुलेशन की बात कर रहे हो जो 1850 का हो, बॉम्बे रेगुलेशन, बंगाल रेगुलेशन, मेड्रास रेगुलेशन, आज भी कायम है वो। राइट्स दे रहे हैं वो, लीगल लीगल राइट्स, सिविल राइट्स दे रहे हैं। सो इसीलिए सीपीसी का, क्योंकि मैंने बोला दायरा बड़ा है, क्रिमिनल सिविल जस्टिस सिस्टम का दायरा बड़ा है, इसीलिए हर चीज को वहां कवर नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि सीपीसी छोटे से छोटे कोर्ट को एक पावर देती है, जिसको हम इनहेरेंट पावर कहते हैं, सेक्शन 151 सीपीसी, जहां वो कहती है कि बाई चांस कोई चीज नहीं लिखी हुई, इसका समाधान ना लिखा हो, you can use your own good sense, your judicial sense, and decide that matter.
बट अब हम आते हैं क्रिमिनल लॉ में। क्रिमिनल लॉ में कौन सा एक्ट करना है और कौन सा इलीगल ओमिशन पनिशेबल है, ये क्लियरली लिखा हुआ है। और अगर आपने वो एक्ट कर दिया जो मना है, या जो नहीं करना था कर दिया, या नहीं किया, अगर नहीं किया, वो मना है, नहीं करने को मना है, देन पनिशमेंट, दोनों चीजें लिखी हुई है। यानी कि क्रिमिनल लॉ में कुछ भी अनरिटन नहीं है। सो देयर कैन बी नथिंग विच इज अनरिटन इन क्रिमिनल लॉ। दैट इज द रीजन व्हाई हम जहां पे मना किया है कि ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, और अगर आप इसको करते हो तो फिर ये सजा है, उसको हमने एक वर्ड दे दिया, ऑफेंस। सो व्हाट इज एन ऑफेंस? दैट व्हाट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड मेड पनिशेबल बाय लॉ। सीआरपीसी में हम आएंगे। सीआरपीसी एंड जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 डिफाइंस एन ऑफेंस। डेफिनेशन दोनों की सेम है। ऑफेंस क्या होता है? समथिंग प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड मेड पनिशेबल बाय। तो दो चीजें हैं, प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड पनिशेबल एज पर लॉ। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप, मेरा एक सिविल राइट था, आपने इन्फ्रिंज कर दिया, या मैंने आपने एक ऑफेंस कर दिया। ये तो था कि जब आपने ऑफेंस किया या आपने कोई मेरा सिविल राइट तोड़ा, तो क्या हुआ था? आपने कहीं ना कहीं मेरा कोई राइट छीन लिया। एंड वी हैव रेड एवरी राइट हैज अ रेमेडी। अब हर राइट का रेमेडी है। अब रेमेडी मैं कैसे लूं? तो मेरा राइट कौन सा है या कौन सा ऑफेंस है, सब्सटैंटिव लॉ बताता है। पर एक बार आपने मेरा वो राइट छीन लिया, चाहे क्रिमिनल लॉ में चाहे सिविल लॉ में, तो अब आपको पनिश कैसे किया जाए, या सिविल लॉ में आपको कंपनसेशन कैसे दिया जाए, अब ये तो कोई ना कोई डिसाइड करेगा। वो कौन करेगा? वो कोर्ट करेगा। इंडिया में उसको हम कोर्ट कहते हैं, या मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में हम उसको कोर्ट कहते हैं। सो इट इज द कोर्ट विच विल डिसाइड कि आपको कंपनसेशन मिले सिविल में या आपको सजा मिले क्रिमिनल में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा? उसके बाद अंतर्यामी तो है नहीं, वो कहते ओके रुक, मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, तीसरा नेत्र है मेरे पास, खुल जाएगा, मैं अभी बताता हूं। नेचुरली यू विल हैव टू नाउ वर्क ऑन व्हाट? अब हर चीज का मुझे क्या चाहिए? प्रमाण। हर चीज का मुझे अब चाहिए कि ठीक है, अब तुम लाओ, एक एक पॉइंट तुम लेके आओ, तुम अब मेरे पास हर चीज का एविडेंस लेके आओ। एविडेंस लाने का मतलब क्या हुआ कि जी फर्स्ट डे से मेरा मेरे साथ मेरा मेरा ये हुआ, मेरे साथ उसने ये किया, उस टाइम पे ये वहां मौजूद था। सो दैट मीन्स आई विल हैव टू पुट अप ऑल माय एक्यूजेशंस which I can prove in the court. एक्यूजेशन मैं कैसे प्रूव कर सकता हूं? किन चीजों से प्रूव कर सकता हूं? विटनेसेस ले आऊंगा, मेरे सामने उसने चांटा मारा था, डॉक्यूमेंट्स ले आऊंगा, या कोई अगर मटेरियल चीज है वो ले आऊंगा। सर ये देखो खून से सनी हुई मेरे कमीज है, इसने मारा था, इसका खून भी लग गया था, ब्लड टेस्ट करा लो। एज ए रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज कि जो जिसका राइट या जिसके खिलाफ ऑफेंस हुआ है, उसकी जिम्मेवारी है, क्योंकि उसको रिलीफ चाहिए। इसीलिए हम एक वर्ड यूज करते हैं कि उसको प्रूव करने का बर्डन किसके ऊपर है? जो रिलीफ चाहता है बर्डन उसके ऊपर होता है, जिसको हम कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूविंग। तो इसका मतलब है जिसके साथ जिसका राइट गया है, जिसने ये सब किया है, वो ही सारे के सारे अब कोर्ट में
एविडेंसेस लेके आएगा। अब एविडेंस मैं लेके आ रहा हूं, तो हो सकता है वो झूठ बोल रहा हूं, मैं उसको ट्यूटर करके ले आऊं, ऐसे बोल देना। इसीलिए अब हमने एक सिस्टम बना दिया। वो क्या सिस्टम बनाया कि जो आएगा वो मेरी तरफ से पहले एक स्टेटमेंट देगा, जिसको हम एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं, और उसको अब दूसरी पार्टी क्रॉस करेगी ताकि सच सामने आ जाए। बाई चांस उसमें कंफ्यूजन आ जाए तो री एग्जामिनेशन का भी प्रोविजन है, वो हम बाद में देखेंगे। तो बेसिकली हर एविडेंस जो मैं लेके आऊंगा वो मैं ला रहा हूं, दूसरी पार्टी को नेचुरल जस्टिस डिमांड्स कि वो पूरा का पूरा उसको क्रॉस करे, और सच्चाई तो अब नेचुरली सामने आ जाएगी सच्चाई। जब दूसरा उसको पूरा पूछ रहा है तो सामने आ जाएगी कि ये सच है कि झूठ है, बात खत्म हो जाएगी। अब एक बार सारे एविडेंसेस हो गए, कोर्ट अब क्या करेगा? कहेगा तुम लोग जाओ, सारे एविडेंसेस खोल के बैठ जाएगा। उसने कहा ये था, क्रॉस में टूट गया, क्रॉस में डर गया, झूठ बोल रहा था, क्रॉस में नहीं टूटा, सच बोल रहा था। ओके, अब सारे एविडेंसेस जो आए हैं, तो एविडेंस का मतलब क्या हुआ? क्या सिर्फ एक तरफा बोलना? नहीं, एक तरफा बोलना, उसको क्रॉस करना, और अगर जरूरत पड़े तो री एग्जामिनेशन करके तब जाके वो एविडेंस बनता है। तो एक बार एक चीज का एविडेंस कट एंड ड्राई हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं सारे एविडेंसेस को एक तरह से देखूंगा और उनको अब एप्रिशिएट करूंगा। एप्रिशिएट करके मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचूंगा, ऑफेंस हुआ था कि नहीं, या उस केस में सिविल राइट इन्फ्रिंज हुआ था कि नहीं। अगर हुआ है तो किस हद तक हुआ है, अगर ऑफेंस हुआ है तो किस हद तक हुआ है या क्यों किया है, और उसके बेस पे मैं अपना जजमेंट दूंगा। सो व्हाट इज द जजमेंट? जजमेंट क्या है? इट इज एन एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस which has been adduced before the court during the course of the trial. इस कंटेक्स्ट में अब हम, क्योंकि एविडेंस पे वर्ड आ गए हैं, जो पुलिस इकट्ठा करती है वो एविडेंस नहीं है, हम वो इकट्ठा कर रही है कहेंगे, बट बेसिकली अब क्वेश्चन ही उठता है, हमारे अब क्वेश्चन उठते हैं तीन, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एविडेंस एक्ट की या बीएसए की। तीन क्वेश्चन जो उठते हैं, व्हाट डज एविडेंस एक्ट डील विथ, वेयर कैन एविडेंस बी यूज्ड, and which evidences can be put up. So that means what, where and which, तीन क्वेश्चंस अराइज होते हैं। पहला पॉइंट, एविडेंस सिर्फ फैक्ट्स का दिया जाता है। फैक्ट क्या होता है वो हम आगे जाके देखेंगे, अभी थोड़ा इंट्रोडक्टरी में सिर्फ बता रहा हूं। फैक्ट वो होता है जो देखा जा सकता है, जो सुना जा सकता है, जो महसूस किया जा सकता है। फैक्ट क्या नहीं होता? मैं सोचता हूं कि ये बहुत ही खराब टीचर है, मैंने बड़ी गलती कर दी यहां की। इट इज योर ओपिनियन, ओपिनियन मे नॉट बी अ फैक्ट। आप सोचते हो बहुत ही खराब पढ़ा रहा है, दूसरा कह रहा है कमाल का पढ़ा रहा है। दैट इज द रीजन व्हाई इट कैन नॉट बी अ फैक्ट। सो एक चीज याद रखना, एविडेंस कैन बी गिवन ओनली ऑफ फैक्ट्स। अगर वो फैक्ट नहीं है तो फिर उसको एविडेंस में नहीं ला सकते। ऑफ कोर्स उसके एक्सेप्शंस हैं, हम देखेंगे आगे जाके, बट बाय एंड लार्ज एक फैक्ट है। फैक्ट को अब हमने, तो अब हर चीज फैक्ट में होती है। तो फैक्ट की जब मैं बात करता हूं, याद रखना, एक तो मेन मुद्दा होता है, उसने मुझे चांटा मारा, और एक उस चीज को लीडिंग, मैंने इसको गाली, इसने मुझे गाली दी थी, मैंने इसको एक चांटा मारा था क्लास में, अब ये उसकी हिस्ट्री दे रहा है, मोटिव दे रहा है, उससे जुड़े हुए फैक्ट्स।
तो जुड़े हुए, एक तो हो गया मेन मुद्दा और उस एक मेन मुद्दे से जुड़े हुए मुद्दे, अब ये सारे कोर्ट के सामने डाल सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया हम मेन मुद्दा, मेन फैक्ट और उससे जुड़े हुए फैक्ट्स कोर्ट में डाल सकते हैं। तो व्हाट कैन वी पुट? ओनली फैक्ट्स। फैक्ट्स को दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, मेन एंड रिलेटेड। रिलेटेड, अभी मैं जार्गन यूज नहीं करूंगा, फैक्ट इन इश्यू से नहीं करूंगा, मुझे नहीं आता इतना लॉ। हम अभी सिंपल बात करेंगे। सो हम बात कर रहे हैं कि कोर्ट में जाएगा क्या? सिर्फ फैक्ट्स। फैक्ट्स ऑफ कोर्स दो तरह के हो सकते हैं, एक मेन मुद्दा और एक उनसे जुड़े हुए जो उनको, उन पे लाइट देते हैं, जो उनको, उनके ऊपर जो उनको प्रूव या डिसप्रूव करने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन उठता है कि कहां दिया जाएगा। नाउ इसके लिए, इसके लिए हमारा जो एविडेंस एक्ट है उसका सेक्शन नंबर 1 ही बता देता है कहां देंगे। क्या कोर्ट, क्या पुलिस के सामने एविडेंस दिया जाता है? द आंसर इज नहीं। क्या पुलिस क्रॉस एग्जामिन करती है? नहीं। तो पुलिस तो सिर्फ एविडेंस इकट्ठा करती है, तो वो एविडेंस नहीं कहा जा सकता। वो तो मैं उस केस से संबंधित चीजें इकट्ठी कर रहा हूं। सो एक चीज याद रखना कि एविडेंस की एंट्री कहां होती है। अगर मैं जाता हूं सेक्शन 1 में, जो हम पढ़ेंगे, इन ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर अ कोर्ट, सो सिर्फ कोर्ट में एविडेंस एक्ट लागू होगा। सो पुलिस को, इसीलिए पुलिस वालों को एविडेंस एक्ट नहीं आता, क्योंकि उनका वाई नहीं पड़ता उससे। तो इसकी जरूरत कहां, शुरू कहां होता है? इन द कोर्ट। नेचुरली क्योंकि कोर्ट में जा रहा है ये, तो अब ये नेचुरली क्वेश्चन उठता है, व्हाई द कोर्ट? पहले क्यों नहीं? हर चीज का वाई होता है। सी वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर कि डिसाइड किसने करना है? जज ने, कोर्ट ने। पुलिस का काम क्या है? डिसाइड करना है क्या? नहीं, वो अपने एविडेंसेस इकट्ठे करके कोर्ट में देती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ट्रायल का प्रिलिमिनरी मैटर है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस किसी निष्कर्ष पे पहुंचती है, एक फाइनल रिपोर्ट देती है, उसके बाद फिर कोर्ट पिक्चर में आता है, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। सो नेचुरली एक चीज याद रखना, एविडेंस एक्ट शुरू होता है जब कोर्ट शुरू होता है, और जैसे ही मेरा जजमेंट आता है वो खत्म हो जाता है। दैट इज द एंड। सो एविडेंस starts with the start of the trial and ends with the judgment. एविडेंस एक्ट से फायदा क्या है? एविडेंस एक्ट अगर ना होता तो क्या होता? एविडेंस एक्ट से हमें यह पता चलता है, ए, कौन से एविडेंसेस दिए जा सकते हैं। अगर ये ना होता, कोई भी मुंह उठा के आ जाता, ये भी ले लो जी। फॉर एग्जाम्पल, एक मर्डर हुआ, उस मर्डर में वो आदमी ने सारी उम्र नीले कपड़े पहने थे। मर्डर वाले दिन उसको किसी ने रेड टी शर्ट दे दी थी, उसने कहा बड़ा हैंडसम लग रहा हूं, उसने रेड टी शर्ट पहन ली, उसी दिन उसका मर्डर हो गया। लॉयर कहता है जी पहले ये प्रूव करेंगे कि रेड टी शर्ट का क्या लेना देना है मर्डर से। क्या बिलाव करोगे आप जज हो तो? या अगर वो कहे सर वो सारी उम्र परांठे खाता था, आज पहली बार इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाया, आज खाते ही मर गया, सर ये पक्का जुड़ा हुआ है मर्डर के साथ। इसका मतलब है हम वाहियात
एविडेंसेस अलाउ नहीं करेंगे। इसका मतलब है हम रोक लगा देंगे। अगर ये रोक ना लगाता, ये कौन रोक लगाता है? एविडेंस एक्ट। इसीलिए हम आएंगे कौन सी चीजें एडमिसिबल हैं। सो कौन सी चीजें एडमिसिबल हैं, ये हमें एविडेंस एक्ट बताएगा। अगर ना बताता तो फिर तो खिचड़ी बन जाती। फिर तो एक एक केस अभी 5 साल 10 साल चलता है, फिर तो 50 साल चलता। दूसरा नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है कि डॉक्यूमेंट्स आते हैं। अब हर डॉक्यूमेंट को अगर हमने प्रूव करना शुरू कर दिया तो बड़ा टाइम लग जाएगा। एक सर्टिफिकेट है, आप ले आए कि जी मैं एलएलबी की है, वो नहीं जी नहीं, प्रूव करो, पंजाब यूनिवर्सिटी से बुलाओ, वीसी को बुलाओ, कहो ये बताओ ये तेरे साइन है, इसने बाकी इतने परसेंट लिए, बताओ। हर डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए हमें बुलाना पड़ता। एविडेंस एक्ट कहता है प्रिजम्पशन ले लो ना, मान के चलो ये सही है। अगर आप कहते हो गलत है तो आप प्रूव करो, हम तो मान के चलेंगे सही है। सो एक छोटा और करने के लिए रास्ता ले आता है कॉल्ड प्रिजम्पशंस, तो वो भी एविडेंस एक्ट इंट्रोड्यूस करता है। तीसरी चीज, मेन काम क्या है जज का? टू एप्रिशिएट एविडेंस। इसीलिए एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस की बहुत सारी चीजें, वो भी हम आएंगे इसके, विल टॉक। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी बात कर रहे हैं, विल गो इनटू डिटेल्स। तो एप्रिसिएशन में क्या क्या हो सकता है? ए, कौन से विटनेस अलाउड है? अगर कोई विटनेस कहे कि मैं जवाब नहीं देता, फिर क्या करोगे? एक विटनेस शक्ल से ही लग रहा है झूठा है, एक विटनेस बार बार पानी पी रहा है, पता चल रहा है झूठ बोल रहा है, पता चल जाता है। सो इन सच केसेस हाउ विल यू अप्रिशिएट सच एविडेंस? तो तीसरा मेन एस्पेक्ट है कि अप्रिशिएट। तो अप्रिशिएट करने के लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि सपोज, अब हर आदमी, जज तो इज नॉट एक्सपर्ट। वो कहता है देखो इसमें राइगर मोर्टिस हो गया था, बॉडी को 6 घंटे हो गए थे। सर राइगर मोर्टिस क्या होता है? मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं, आप लोग ही बोलोगे, कल को जज बन जाओगे। तो फिर हम एक काम करते हैं ना, एक्सपर्ट्स को अलाउ कर देते हैं। पर सर उसका तो ओपिनियन है, चलो कोई बात नहीं, एज एन एक्सेप्शन अलाउ कर देते हैं। सो ये सारी चीजें एविडेंस एक्ट करता है। इसीलिए प्लीज रिमेंबर, ओरिजिनल कागज डालने के कॉपी डालनी है, अगर कॉपी अलाउड है तो कब अलाउड है, ये सारी चीजें हमें, जज की पावर क्या है, क्या क्या अलाउ कर सकता है, क्या क्या अलाउड नहीं है, ये सारी चीजें हमें एविडेंस एक्ट बताता है। तो इसका मतलब है जैसे ही ट्रायल शुरू होता है, एविडेंस एक्ट की किताब खुल जाती है, और जैसे ही जजमेंट आता है बंद हो जाती है। सो एविडेंस एक्ट starts with the trial and ends with the judgment। सिर्फ कोर्ट के लिए बनाया गया है। अब क्योंकि सिर्फ कोर्ट के लिए बनाया गया है, इसीलिए आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके इंटरव्यू का, क्योंकि सिर्फ ये जजों का मामला है। क्योंकि जजों का मामला है, इसीलिए आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का छोटा सा ये पतला सा एक्ट तो है, पर बड़ा डेंजरस एक्ट है, क्योंकि इसमें हर डिटेल्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई, बिकॉज इट अप्लाइज ऑन यू एज अ कोर्ट। नाउ यू नो, व्हेन आई कम टू एनी एक्ट, हमारा जो भी जस्टिस सिस्टम है उसका बेस होता है नेचुरल जस्टिस। अगर नेचुरल जस्टिस नहीं है तो वो ट्रायल विशिएटेड है, चाहे वो सिविल है चाहे वो क्रिमिनल है। सो एक चीज बहुत क्लियर है कि कोई भी लॉ अगर बनता है, अगर उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होना, तो इट मस्ट फॉलो द प्रिंसिपल्स, द टेनेट्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। इंडियन एविडेंस एक्ट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन नेचुरल जस्टिस। हम पूरा मौका देते हैं दोनों पार्टीज को। इसीलिए प्लीज रिमेंबर,
Natural justice is the backbone of a fair trial, and fair trial is a part of my most fundamental right of Article 21, right to life. So इसीलिए अगर नेचुरल जस्टिस नहीं है तो फेयर ट्रायल नहीं है, और अगर फेयर ट्रायल नहीं है तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट, राइट टू लाइफ, इन्फ्रिंज हो जाता है. हाउएवर, जितने भी हमारे लॉज हैं, चाहे सीपीसी है, चाहे सीआरपीसी है, चाहे एविडेंस है, दे ऑल हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. अगर वो नहीं फॉलो करेंगे, दे विल बी स्ट्रक डाउन एज against my fundamental right. Before we start the Evidence Act per se, let me just go quickly to a brief history of evidence in India. सी, ये एक ऐसी चीज है जो किताबों में लिखी हुई, चलो बाद में एक्ट के रूप में बाद में आती है. अगर हम हिंदू लॉ में जाएं, हिंदू लॉ में हमारा सब्सटैंटिव लॉ शुरू होता है मनुस्मृति से, जहां 18 हेड्स लॉ के आते हैं. क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉन्ट्रैक्चुअल लॉ, सब आते हैं. बट मनुस्मृति में प्रोसीजरल लॉ ज्यादा नहीं है. प्रोसीजरल लॉ क्या होता है? वो प्रोसीजर जो हमें बताता है कि किस तरह से आपके राइट्स फाइनली डिटरमिन किए जाएं और रिलीफ दिया जाए या क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट दी जाए. सो प्रोसीजर में क्या होता है? ए, कौन से कोर्ट्स, बी, उनका उनका प्रोसीजर क्या है, ट्रायल के तरीके क्या है, कौन से कोर्ट्स हैं. यानी कि पूरा का पूरा प्रोसीजर डिटर्मिनेशन का ऑफ द फाइनल आउटकम. सब्सटैंटिव राइट्स आपको राइट्स देते हैं. आपका राइट्स इन्फ्रिंज हुए या नहीं हुए, क्या डिसाइड करेगा? कोर्ट. कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा? थ्रू अ प्रोसीजर. उस प्रोसीजर जो स्टैट्यूट के रूप में आता है, उसको हम कहते हैं प्रोसीजरल लॉ. तो हमारे प्रोसीजरल लॉ कौन से मोटे मोटे? सीपीसी, सीआरपीसी, एंड ऑफ ऑफ द थ्री, सी प्रोसीजरल लॉ को हम एडजेक्टिव लॉ भी कहते हैं. ऑफ द थ्री एडजेक्टिव लॉज, द मोस्ट एडजेक्टिव इज एविडेंस एक्ट. ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में भी आया हुआ है. सबसे ज्यादा प्रोसीजरल एविडेंस एक्ट है, क्योंकि सीआरपीसी में भी बहुत सारा सब्सटैंटिव पार्ट है, सीपीसी में भी बहुत सारा सब्सटैंटिव पार्ट है, बट एविडेंस एक्ट में या बीएसए में there is a minuscule part of substantive act. There is more or less, we will say, almost pure procedure. एस्टॉपल को छोड़ दो, अदरवाइज सारा कुछ ही जो है वो एक प्रोसीजर है. नाउ, जैसे कि मैंने बोला, मनुस्मृति ने हमारा सब्सटैंटिव लॉ सेट किया, बट बाद में जो हमारी स्मृतिज आती हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, उनमें पहली बार प्रोसीजर दिया गया. और हमारा जो प्रोसीजरल लॉ आज हम देखते हैं, चाहे सिविल जस्टिस सिस्टम या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, वो हमें, ये हमारे दो फाउंटेन हेड्स एंड सोर्सेज हैं जहां से हमारा ये सारा लॉ आता है. अगर मैं इन लॉज में जाता हूं, जैसे मैं नारद स्मृति में जाता हूं जो बहुत बहुत डिटेल्ड प्रोसीजर का एस्पेक्ट है, या इवन याज्ञवल्क्य स्मृति में जाता हूं, उसमें उन्होंने 4 तरह के एविडेंसेस डिस्कस किए हुए हैं. पहला लेख्या. लेख्या कॉरेस्पॉन्ड्स टू डॉक्यूमेंट्स, जो हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करते हैं. सो लेख्या, लेख, जैसे आज भी हम कहते हैं लेख, लेख वाला, तो लिखा हुआ. सो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मॉडर्न उसको लेख्या कहते थे. साक्ष्य, विटनेस, जो ओरल एविडेंस आते थे. द लॉ ऑफ पोजेशन, भुक्ति,
भुक्ति बेसिकली मेंट पोजेशन, जो आज भी हमारा पोजेशन, हमारे इवन जूरिस्प्रूडेंस में ओनरशिप एंड पोजेशन में हम हर साल क्वेश्चन भी आता है एलएलबी में, तो वो सारा वही है। और चौथा था दिव्य। दिव्या का मतलब होता था इनवोकिंग द गॉड्स। तो उसमें क्या होता था, जैसे आपने चोरी किया नहीं, ये काम करेंगे, तुम्हें पहाड़ से ऊपर से एक लात मार के गिराएंगे, अगर तुम बच गए तो तुमने चोरी नहीं की थी, या तुम्हारे हाथ पे जलता हुआ सिक्का रख देंगे, अगर तुम ना जले तो तुमने चोरी नहीं की थी। नाउ दिस वाज नॉट बेस्ड ऑन रीजन, इसलिए ये ज्यादा लंबा नहीं चला। इसलिए दिव्या एज अ फॉर्म ऑफ एविडेंस फेल इनटू डिसयूज वेरी क्विकली। और लेट मी टेल यू, दिव्या वाज नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में जब रूल ऑफ द चर्च था तो दिव्या पे ही चलता था उनका सारा एविडेंस। तो ये नहीं है कि हमारी कंट्री में ही था, ऑल ओवर द वर्ल्ड था, क्योंकि उस टाइम पे सब इसी चीज को बिलीव करते थे। नो, जहां तक लेख्या का सवाल है, दो तीन तरह के हमारे वहां पे डॉक्यूमेंट्स होते थे, और आज भी वही तीन तरह के हैं। राज साक्षी का, राज साक्षी का कौन से होते हैं, जो आज के दिन में हम पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। सो यू कैन सी कि आज का एविडेंस एक्ट स्मृति के टाइम्स में था। सो राज साक्षी का यानी कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, स साक्षी का दैट मींस जो खुद लिख रहा है बट अटेस्ट करके ला रहा है, आज भी हमारा लॉ ऑफ अटेस्टेशन है। सो स साक्षी का, और तीसरा था असाक्षी का, विच मींस अपनी हैंड राइटिंग में लिखा जा रहा है। आज भी यही क्लासिफिकेशन है, public documents, private documents, private documents which need attestation, and private documents which don't need attestation. उसके बाद जब हम आते हैं विटनेसेस पे, साक्ष्य पे, वो हमें क्लियर, धर्मशास्त्र जो है हमारे, स्मृति जो हैं, वो हमें क्लियरली बताते हैं कि एक विटनेस को एग्जामिन कैसे करना है। एग्जामिन करने का तरीका, प्लीज रिमेंबर, वही है जो हम बहुत दिनों तक फॉलो कर रहे थे। पहले हम, इवन वी वर नॉट, इवन व्हेन अर्लियर टाइम्स, यू नो, अभी डिसयूज हुआ है, नहीं तो पहले एक्चुअली गीता लेके आते थे, कहते थे गीता पे हाथ रख के बोलो, या कुरान शरीफ पे हाथ रख के बोलो, जो कहूंगा सच कहूंगा। या आज भी कई जगह फॉरेन कंट्रीज में, क्रिश्चियन कंट्रीज में आज भी बाइबल लेके आते हैं। ये चीज वहां से आई थी कि यू टच एनी धर्मशास्त्र और अब बोलो, सच बोलो कि होगा। सिमिलरली होली कुरान पे आप अपना करो। सो एक तो ये था। दूसरा, एक छोटा सा फर्क था मॉडर्न एविडेंस एक्ट से, कि सिविल केसेस में सिर्फ हाई रेप्यूट के विटनेसेस अलाउड थे। सिविल केसेस में वो कहते थे सिर्फ हाई कैरेक्टर्ड विटनेसेस आर अलाउड, जो थोड़े रिफरैफ टाइप हैं उनको अलाउड नहीं है। बट क्रिमिनल लॉ में, जैसे कि हम कहते हैं, इफ अ मर्डर हैपेंस इन अ ब्रोथल, ओनली स्ट्रम्पेट्स कैन कम एज अ विटनेस, ओनली जो वहां के लोग हैं वही आ सकते हैं। इसीलिए क्रिमिनल लॉ में इवन बैड कैरेक्टर्ड पीपल वर अलाउड। सो हिंदू लॉ में, सिविल लॉ में तो साक्ष्य नहीं दे सकता था अगर कोई बैड कैरेक्टर्ड पर्सन है, क्रिमिनल लॉ में दे सकता था। बट आज के दिन में हमारा ये फर्क नहीं है। नाउ एक चीज हमेशा याद रखना प्लीज, जैसे कि मैंने बोला, इंडियन एविडेंस एक्ट मेक्स इट्स जर्नी, मेक्स इट स्टार्ट विद द बिगिनिंग ऑफ अ ट्रायल, एंड विद द एंड ऑफ अ ट्रायल इट एंड्स। दो जस्टिस सिस्टम है, सिविल जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। दोनों में एक है पार्ट हमारा सब्सटैंटिव लॉ, और दूसरा प्रोसीजरल लॉ। दोनों में प्रोसीजरल लॉ में ट्रायल होता है, दोनों में एविडेंस एक्ट लागू होता है। सो याद रखना, ये जो एविडेंस एक्ट लिखा हुआ है, ये सिविल लॉ के लिए भी लिखा गया है, और क्रिमिनल लॉ पे भी उतना ही अप्लाई करता है। इसके बारे में मैं और डिटेल में आऊंगा लिटिल लेटर, बट जस्ट कीप इट एट द बैक ऑफ योर माइंड दैट देयर इज नो सेपरेट एविडेंस एक्ट लॉ फॉर सिविल जस्टिस सिस्टम, एंड नो सेपरेट एविडेंस फॉर, और इवन इन दिस एविडेंस एक्ट हम ये नहीं कह सकते ये वाला हिस्सा तो सिविल वाला है, ये वाला क्रिमिनल है। सारा का सारा एविडेंस एक्ट दोनों पे अप्लाई करता है। बट हैविंग सेड दिस, कई प्रोविजंस हैं जहां पे क्लियरली लिखा हुआ है इन सूट्स। तो जहां आपने लिख दिया इन सूट्स, नेचुरली क्रिमिनल लॉ पे थोड़ा ना अप्लाई कर सकते हो आप। या जहां लिख दिया मैंने इन एन ऑफेंस, तो वहां सिविल लॉ पे नहीं अप्लाई होगा। पर इनको छोड़ दो तो एविडेंस एक्ट अप्लाई स्क्वायरली एंड इक्वली
on both justice systems, civil as well as criminal. Now, जब हम आते हैं पोजेशन पे, भुक्ति पे, सेम लॉ ऑफ पोजेशन जो आज भी हमारा है, जो हम बेसिकली पोजेशन का लॉ हम पढ़ते हैं टीपीए में, तो वो पूरा का पूरा लॉ सेम है जो टीपीए में हम पढ़ेंगे. सो टीपीए का बेसिक्स आर रिफ्लेक्टेड अगेन इन आवर जस्टिस सिस्टम गिवन इन आवर धर्म शास्त्र. जब हमारा इस्लामिक एज आया, इस्लामिक एज में प्लीज रिमेंबर इस्लाम इज बेस्ड ऑन जस्टिस. द वेरी कंसेप्ट ऑफ इस्लाम एज पर द शरीयत इज जस्टिस. इसीलिए प्लीज रिमेंबर यहां पे भी सेम सिस्टम था. हाउएवर थोड़ा सा फर्क है कि यहां पे जो ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का फर्क है, वो क्या फर्क है कि ओरल एविडेंस के ऊपर होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. बट मुस्लिम लॉ में देयर वाज अ स्लाइट डिफरेंस इन द सेंस दैट oral evidence took a higher position than documentary evidence. उसके बहुत सारे कारण थे, we will not go into those, but ये थोड़ा सा फर्क था. इस्लामिक लॉ से हमने सीखा कि विटनेसेस एक का जब when we are examining one witness, other witnesses should be out of the court. आज भी हम ये कोर्ट में फॉलो करते हैं. ये चीज हमें इस्लामिक लॉ से मिली थी. दो तरह के हमारे एविडेंस होते हैं जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट एविडेंस एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. डायरेक्ट एविडेंस होता है कि मैंने आपको देखा, आप मर्डर कर रहे थे, आई सॉ यू. सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है कि मैं जब कमरे में घुस रहा था, बाहर भाग रहे थे और मैं अंदर गया तो ताजा ताजा कोई आदमी मरा पड़ा था. अब हो सकता है कि आपने मर्डर किया हो, बट हो सकता है. इसीलिए प्लीज रिमेंबर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऑलवेज इज लोअर देन डायरेक्ट एविडेंस. दोनों जो है हमारे हिंदू एंड मुस्लिम जस्टिस सिस्टम्स अलाउड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, दोनों अलाउ करते हैं. तो बेसिकली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की एक्सेप्टेबिलिटी हमारे दोनों हिंदू एंड मुस्लिम लॉ से आते हैं. जब अंग्रेज आए, अंग्रेज अपने साथ कॉमन लॉ लाए और कॉमन लॉ लाने पे उन्होंने अब एक स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस लाए. क्योंकि अंग्रेज पहले प्रेसिडेंसीज में आके बसे, कैलकाटा, बॉम्बे, मेड्रास. इसीलिए जो उन्होंने अपने कोर्ट्स बनाए, यानी कि प्रेसिडेंसी कोर्ट्स, उनमें उन्होंने कॉमन लॉ ऑफ एविडेंस अप्लाई करना शुरू किया. बट इंडिया में तो और बहुत इंडिया था, बड़े सारे प्रोविंसेस थे. इसीलिए उन्होंने सोचा कि इंडिया में एक यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए. और पहला जो अर्लीस्ट एक्ट बनाया गवर्नर जनरल ने, वो था 1835 का एविडेंस एक्ट. दैट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड एविडेंस एक्ट ऑफ द कंट्री. बट वो उसमें बहुत सारी कमियां थी, नेचुरली एक फर्स्ट ट्राई थी. तो तकरीबन 20 साल तक 1853 टू 1835 टू 1853 उसमें रिफॉर्म्स करते रहे. बट देन आल्सो इट वाज नॉट अ वेरी वेरी कोजेंट नहीं था. कंफ्यूजन था, प्रेसिडेंसीज वाला क्या अप्लाई करें हम इन ऑफिसल्स इन प्रोविंसेस. इसीलिए उनको अब बोला गया कि एक पूरा पैन इंडिया का लॉ बनाओ, और उसके लिए एक कमेटी बनाई गई. सर जेम्स फिट्जजेरल्ड स्टीफन, JF स्टीफन की एक कमेटी बनाई गई जिसमें 6 कमिश्नर्स थे, और उन लोगों ने ये 1872 का एविडेंस एक्ट लिखा. ये जो एक्ट है, it was passed in 1872 and received its assent of the Governor General on 15th March 1872, and it came into force on 1st September 1872.
तो 1 सितंबर 1872 में हमारा ये एविडेंस एक्ट आ गया था। अब ये जो हमारा एविडेंस एक्ट आया, प्लीज रिमेंबर उस टाइम पे अनडिवाइडेड इंडिया था, इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान के लॉ सेम है। इनफैक्ट आई वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड अबाउट 2 months बैक आई गॉट अ voice message from in my WhatsApp from a Pakistani judge. I didn't know that he was following my lectures. His name is Mushtaq. I can even name him. He became an ADJ in Lahore High Court. And he told me that, sir, we have studied entire law. मैंने आपसे ही पढ़ा है क्योंकि I don't know how he got access to all my lectures. And then he thanked me and he said, लाहौर के बहुत सारे students मुझे follow करते हैं. My first question was कि तुम्हारा law same है क्या? तो इसे सर कानून शहादत इज सेम एज योर एविडेंस एक्ट, थोड़ा ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर किया, बाकी सेम है. सीपीसी तो सेम है, बस आपके 1976 के आप अमेंडमेंट छोड़ दो या 2002 है 1919 के अमेंडमेंट छोड़ दो, सेम सीपीसी है हमारी. लिमिटेशन लॉ सेम है. इवन जो हमारा हमारा क्रिमिनल लॉ है, जो जैसे उनका शरीयत होता है, कहते शरीयत नहीं है, आपका आईपीसी बहुत हमारे से मैच करता है. सो बेसिकली प्लीज रिमेंबर हमारा उनका और श्रीलंका, सो जहां जहां ब्रिटिश इंडिया था सब जगह ये अप्लाई हुआ. जैसे कि मैंने बोला, पाकिस्तान ने थोड़ा बहुत चेंज किया और उसको कानून शहादत बना दिया, उसका नाम चेंज कर दिया, बट बेसिकली सेम वाइन इन न्यू बॉटल्स, कुछ खास फर्क नहीं है. इज एवरीबडी क्लियर टिल नाउ? आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर. अब हम आते हैं मेन एस्पेक्ट बिफोर वी स्टार्ट द एक्ट पर से. हमें एक चीज बहुत जरूरी है करनी, वो है व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ द BSA or Indian Evidence Act. What are the cardinal philosophies which govern Indian Evidence Act? Indian Evidence Act की बेसिक किन चीजों, एक्सिस क्या है, किस पे रिवॉल्व होता है? I am basing my lecture on two very important English jurists, Wigmore and Phipson. ये दो बहुत important jurists हैं एविडेंस के, वर्ल्ड वाइड है. इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रेफर्स टू देम मेनी टाइम्स. मैंने भी अपना लेक्चर, आई मस्ट कन्फेस, मैंने यहीं से चोरी किया हुआ है. इनके अंदर नाउ व्हेन वी रीड दीज टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जूरिस्ट्स, वो कहते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट मेरी आदत पड़ी है बोलने की, सो प्लीज रीड इट एज BS. उसकी कार्डिनल फिलोसफीज हम 3 भागों में बांट सकते हैं. यानी कि पूरा एविडेंस एक्ट अगर हम एक ग्लोब की तरह लें, तो 3 एक्सिस, एक्सिस को हिंदी में क्या कहते हैं, धुरी, धुरी पे घूम रहा है, थ्री एक्सिस पे घूम रहा है. तो 3 कार्डिनल फिलोसफीज पे बेस्ड है इंडियन एविडेंस एक्ट. यानी द इथॉस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. पहला, इंसिस्टेंस ऑन द बेस्ट एविडेंस रूल. दूसरा, नेसेसिटी ऑफ रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी. और तीसरा, discretion while appreciating evidence. तो 3 रिपीट कर रहा हूं. इंसिस्टेंस ऑन द बेस्ट एविडेंस रूल, दूसरा नेसेसिटी ऑफ रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी, और तीसरा डिस्क्रिशन इन एप्रिसिएशन, या जिसको हम कहेंगे एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस. क्या टाइम हो गया? ओके. अब ये 3 फिलोसफीज जो हैं, पूरा का पूरा जो हमारे टोटल सेक्शंस हैं, वो इन तीनों में डिवाइड कर सकते हैं. तो अगर हम बात करें कि इंडियन एविडेंस एक्ट या BSA किस चीज पे डील करता है, 3 चीजों को डील करता है. बेस्ट एविडेंस आना चाहिए, कौन सी चीजें एडमिट होनी चाहिए, और उनको अप्रिशिएट कैसे करा जाए.
ये तीन चीजों में, जैसे हमने शुरू में तीन क्वेश्चन पूछे थे, वो यही, these jurists also say the same things. So please remember the best evidence rule, what should be relevant and admissible, and how to appreciate evidence. Fine, we'll take it up from here in my next lecture. यहीं से कंटिन्यू करेंगे. Wigmore and Phipson. Wigmore. Second word is Phipson. Phipson. Fine. See you all in the next lecture. See you all. Harman, just send me a message. I'll add you.